نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابي يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. چلے سسٹرز، ہمارا آدھا ریویژن ہو گیا تھا. ہاں، تو ہمارا غزوہ احد تک ہم لوگ نے الحمدللہ کمپلیٹ کر دیے تھے. تو دیکھیں، ایک غزوہ کے بعد دوسرا جب غزوہ آتا ہے، مطلب جو سیرت النبی میں ہے، ہاں، تو اس کے بیچ میں چند حادثات ہوتے ہیں. تو وہ بھی سیرت نگار جو تھے نا، جو پرومیننٹ، یعنی کوئی صحابہ نے ریلیٹ کیا یا کسی صحابہ نے اس کو حدیث کے ذریعے بتایا بھی ہو، تو وہ آیا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ دو غزوات کے بیچ میں بھی مسلمان چین سے نہیں بیٹھے تھے. تو کچھ نہ کچھ ہنگامی آرائی ہوتی تھی اور سرایا بھیجا جاتا تھا. کیونکہ آپ کو امیجن کرتے نا کہ جیسے عرب میں پتا چلا کہ جنگ احد، حالانکہ تو ہار تھی، لیکن ہار کے باوجود بھی، جیت کے باوجود ہار تھی، مطلب اٹ واز لائک ڈول. تب وہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ یہ تو ڈول ہے، کبھی ہم جیتتے کبھی تم جیتتے ہو، ہے نا. تو آجو باجو کے جو قبائلی ایریا ہے، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہ انہیں دیکھتے مسلمان اتنا تو کیا انہیں یہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے سرایا بھیجنا پڑا. ہاں، تو اب سرایا کی ہم جب بات کریں تو پہلے آ جائے غزوات، حادثے اور غزوات. غزوات اور حادثے کا مطلب ہے کہ کیا کیا پیش آیا اس دوران میں. ہاں، ٹھیک ہے. چلے، تو اس سے پہلے رجی کا حادثہ. اچھا، رجی کا حادثہ کے پہلے ہم نے کچھ لکھا ہے تھا آپ لوگوں کو کہ ڈائریکٹ رجی کا حادثہ ہی ہے؟ اس کے پہلے کچھ لکھا ہے کہ کون سا کوئی اور غزوات یا سرایا کے بارے میں بتایا ہو؟ میم 2 سرائے لکھوائے تھے، سرایہ ابو سلمہ اور عبداللہ بن انیس. یہ 2 ہاں، تو یہ بعد میں لکھوائے تھے کہ ترتیب کے حساب اسی سے کے کیا ابھی دوران لکھوائے تھے؟ اسی رجی کے کے پہلے؟ دوران سکھا. اچھا، اسی کے دوران. اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجھے یاد لا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. چلے، رجی کا حادثہ. اب اس میں سے آپ کو کوئی مطلب امپورٹنٹ کیا ہے معلوم ہے کہ عدل اور کارا، وہ جو پہلا ہے نا، وہ قبائل کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا. یعنی انہوں نے کیا پیش کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہو. تو اگر کوشچن بنے کہ رجی کے معاملے میں کیا وجوہات دی تھی صحابہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، کیا وجوہات دی تھی؟ ایک لائن آنسر. تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی تھی کہ کچھ صحابہ ان کے ساتھ بھیجتے جو قرآن پڑھائے، ہاں، اور اسلام کا کچھ بات بتائے ہمارے اندر، مطلب ہمارے قبائل میں. ٹھیک ہے. ہاں، بس اتنا سا آنسر. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھیں، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارات مطلب کیپٹنسی میں 10 صحابہ. تو رجی کے معاملے میں کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ تھے. ٹھیک ہے، وہ روانہ کیے. اب خاص کر کے دیکھیے، جب رجی پہنچے نا تو قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لہان، بس وہ چڑھا لائے. ٹھیک ہے. پھر آگے آئے، آگے یہ جو ہے نا، کفار نے ان کو سب کو بد عہدی کی نا، کفار نے بد عہدی کی. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا ہوا کہ 7 صحابہ، بس اتنا یاد رکھے، وہاں لکھ لے، 7 صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا. ہاں، شہید ہو گئے تھے وہ وہیں پر. اور 2 کو مکہ لے جا کر بھیج دیا. دیکھا نیچے دیکھیں، اور وہ دونوں کون تھے؟ خبیب بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما، یہ 2 تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں تو تھوڑا بہت آ جاتا ہے، وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. اچھا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائق، لیکن وہ جو دیکھو لاسٹ پیراگراف، اس میں لاسٹ پیراگراف، رجی کے لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم
اور رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لایا، لیکن اللہ نے بھڑوں کیا ہے بھٹروں بھڑوں کا جھنڈا بھیج دیا. کیا ہے وہ ذرا بتائیں؟ بھیڑوں ہاں بھیڑوں کا جھنڈ. بھیڑوں مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو شیپ. Wolves, ma'am. Wolves. اچھا بھیڑ ہو گئی ہے، بھیڑ میرے خیال سے Sheep, بھیڑ. sheep. شیپ. اچھا ٹھیک. تو بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. ہاں، اور ان کی حفاظت فرمائی. تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے یہ عہد کر رکھا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھیں نا، آخری لائن دیکھیں کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے باڈی کو، ان کے جسم کو وہ بھیڑ کے بیچ میں کہاں غائب کر دیے. آپ کو ایک بات بتانا شاید میں بھول گئی کہ سیرت نگار اور ڈاکٹر یاسر قادری بھی کہتے ہیں کہ سیرت میں یہ ایسے ایک واحد صحابی تھے کہ جن کے لیے نا مطلب ابھی بھی پتہ نہیں چلا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے باڈی کہاں گئی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یعنی ملی ہی نہیں. تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں اٹھا لیے. یہ بس اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہی معلوم. ٹھیک ہے. چلے اب دوسرا بحر معونہ. ٹھیک ہے. یہ بھی یہاں کتنے صحابہ گئے تھے؟ 70 صحابہ. ٹھیک ہے. 70 صحابہ یعنی 70. امیجن کریں. اور وہ وہاں بھی وہی پیشکش کی تھی. کیا؟ اچھا یہاں تھوڑا سا وہ عدل القارا کے لوگ تھے، اور یہاں پر دیکھیں ابو برا عامر بن مالک نے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اسلام کی دعوت دے، اور وہ ان کو لے کے جائیں گے. تو ان کی اس میں تھی، وہ نام یاد رکھنے کی ضرورت تھی. ہاں بس نام یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے؟ کہ وہ دشمن کون تھا؟ عامر بن طفیل. دیکھیے وہ پیراگراف پہ آ جائے کہ بحر معونہ پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت حرام بن ملحان، یہ نام یاد رکھنا پڑے گا. ہاں انہوں نے وہ جو بات کہی تھی نا، اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بس وہ یاد رکھیں ان کے ریفرنس ٹو کانٹیکس میں. ٹھیک ہے. اور وہ جو چاک کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، وہ کون تھا؟ عامر بن طفیل. بس اتنا، یہ دو ہی اس میں سے دو ہی بات یاد رکھو. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، یہاں پر جو بد عہدی کرنے والے جو تھے نا، وہ کون تھے؟ رعل زکوان اور عصیہ بنو سلیم کے. ہاں بنو سلیم کے شاک میں سے کون؟ رعل اور زکوان. اور وہاں عدل اور قارا، اور یہاں رعل اور زکوان. ٹھیک ہے. چلے آگے، بس یہ اتنی بات یاد رکھو. آگے بس 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس میں سے ایک ہی باقی رہے تھے. پہلے دو تو باقی رہے تھے. ہاں کہ وہ کچھ پانی لینے گئے تھے، اور ایک وہ جن کو وہ لوگ نے سمجھا ایک صحابہ کے ایک جسم کے اوپر ایک وہ تھے، تو ایک کے اوپر ایک تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، مطلب انتقال ہو گئے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو بس وہ دو لوگ باقی رہے تھے. چلے آگے. اچھا ان کا کیا انجام تھا؟ وہ میں نے لکھائی تھی آپ کو سائٹ پر، وہ جو 2 صحابہ کے نام اور ان کو دکھائی تھی. دیکھیں اپنے بک میں. جی میم، عامر بن طفیل نے وراثت مانگی تھی، ہوں. خلیفہ بنانے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اچھا نہیں وہ جو 2 صحابہ ہم دو صحابہ کی بات کریں کہ جو بچے تھے، وہ جو دیکھو پانی لینے گئے تھے، ان کے بارے میں نے بتائی تھی، میں نے لکھائی تھی. اچھا چلے، نہیں تو پھر میں بتا دیتی ہوں. میم اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے نا بتانے کے ہاں لیے، اور ایک ہاں وہاں جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا وہاں گئے تھے نا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو دیکھنے گیا کے لیے، اور پھر وہ شہید ہو گئے ہے نا. ہاں ویری گڈ. جی بابا ذرا نام بتا دو نا، نام لکھائی تھی.
मैम ये दे रखा ना काब बिन जैद और नाम उमर यहाँ पे बिन था उमैया, ये है ना नेक्स्ट पेज पे 160 पे, नेक्स्ट पेज पे काब बिन जैद काब और बिन जैद हाँ, काब बिन जैद और उमर अमर बिन उमैया, दिया गया, उमर बिन उमैया, ये ओके 160 पे अमरू फर्स्ट बिन पेज उमैया दमरी, हाँ, अमरू बिन नहीं उमैया अमरू बिन दमरी उमैया और दमरी और मंजर बिन उकबा के मंजर साथ बिन उकबा, लड़ा रहे थे। हाँ, हाँ, ये दो मंजर बिन नाम ये मैम। दो उकबा नाम है पीछे, और आमिर अमरो नहीं, बिन उकबा बिन उमैया आमिर दमरी, नहीं दमरी, नहीं अच्छा अमरो बिन उमैया दमरी, हाँ, और हजरत मंजर बिन उकबा है ना, मंजर बिन उकबा। उकबा। हाँ, चलिए ये दो नाम याद रखें। हाँ, और उसमें फिर एक तो वहां जा देखने गए तो वो भी शहीद हो गए, और एक आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और खास वो बात याद है कि ये दोनों वाकयात के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो वो सेम डे था, इन्हें तकरीबन वही, इन्हें सपोज एक शाम में खबर आई तो एक रात में खबर आई, ठीक है। हाँ, चलिए आगे है। अब हमने अबू सलमा सरिया अबू सलमा के बारे में आपको बताया था, है ना। तो वो उसमें तो कुछ ऐसे बात तो नहीं थी। मैम शबाना ने ग्रुप पे भेजे हैं, उन्होंने हाँ लिखे हैं क्या, वो क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, अच्छा लिखे हैं। हाँ तो हाँ जरा हाँ, वो आंसर जरा पढ़ो ना, क्या है उसके इसमें क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वो खोली नहीं हूँ। शबाना बाजी पढ़िए ना। शिवाना वो जरा लिखे इसके बारे में, मैंने क्या लिखे थे, अबू सलमा सराया अबू सलमा। जी मैम, सरिया अबू सलमा कब पेश आया, किस महीने में? मुहर्रम 4 हिजरी। ओके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता तैयार करके सरिया भेजे, उनके सिपह सालार हजरत अबू सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु को बनाकर रवाना फरमा दिया था। अबू सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई थे और हाँ ये पॉइंट नोट डाउन करें। हाँ ओके ओके, और फर्स्ट मुहाजिरीन में से थे। हाँ, अव्वलून मुहाजिरीन अव्वलून किसको कहते हैं? अबू सलमा रज़ियल्लाहु, ये लक़ब उनको मिला था। हाँ, और सबसे पहले मुहाजिरीन वो थे, ठीक है। हाँ, और आगे कुछ है? जी मैम, वहां पर जंग कब हुई थी? जंग नहीं हुई थी, बिना लड़ाई के वापस आए। माल गनीमत क्या लेकर आए साहबा अकरम? ऊंट, भेड़ और बकरियां लेकर आए। और नेक्स्ट, अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु तआला अन्हु की मुहिम को कौन से महीने और हिजरी में सरिया गए थे? जवाब, मुहर्रम 4 हिजरी, उसी माह 5 तारीख को। खालिद बिन सफियान हजली के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आएगा। मरऊब हो जाओगे और तुम्हें शैतान याद आ जाएगा और तुम डर जाओगे। हाँ, ये लोग उसको देखकर, उनैस को देखकर। जी जी जी। और नेक्स्ट, अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन सफियान हजली का सर कलम करके खिदमत नबवी में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर पेश किया था। इतना ही मैम। जी जी जी, तो ये वो जो जिसको मारने को कहा था उसका नाम क्या था, बताओ? जिसको मारने को कहा था कि उसको देखकर आपको खालिद बिन सफियान हजली। नहीं, उनैस तो बेटा सहाबा, सहाबी अब्दुल्ला बिन वो उनैस तो रदियल्लाहु अब्दुल्ला बिन उनैस जो सहाबी थे, वो जिसको मार दिए थे, मतलब जिसको मारने को कहा था। खालिद बिन हजली ना मैम, खालिद बिन सुफियान अल हजली। एक सेकंड। हाँ ओके, खालिद बिन सुफियान हजली, ओके, ये था उनका ही, वो सर काट के लाए थे। और जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उनैस को कहा था कि ये इनको देखकर तुमको शैतान याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे आ जाए। गजवा बनु नज़ीर, इस पे अच्छा किस चीज की, बस एक इम्पोर्टेंट, बनु नज़ीर ने किस बात की खयानत की थी? मैम माहिदा जो को कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहिदा तोड़ा था। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, वो नाम बोलो, मिसा आपको के वो नाम मदीना, याद? मिसा के मदीना। मिसा के मदीना, ठीक है, उसके खिलाफ मदीना वर्जिश के की थी। आहद शिकने। हाँ हाँ, मिसा के मदीना की अहद शिकनी। हाँ ठीक है ना। जी, तो बस उसी वजह से। और दूसरा जुर्म क्या था? मैंने दो आपको पॉइंट दिखाए थे। दूसरा आप जुर्म सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम था, को मारने की, वो चक्की का हाँ, कत्ल बुरा करने की करना। साजिश की थी, ठीक है। तो इसको अच्छा, फिर उनका अंजाम क्या हुआ? खाली इतना ही, अपने को तो छोटा छोटा दिख रहा है ना। मैम अंजाम क्या उनको हुआ? जिला वतन किया गया। जिला वतन कर दिया गया। ओके, जिला वतन हो गए तो फिर वो कहाँ गए?
देखो आज हम कहाँ पर में चले गए ना। लास्ट पैराग्राफ देखो, शाम। जिलावतनी के बाद उनकी अक्सरियत और बड़े लोग ने खैबर में क्याम किया, हाँ, और एक छोटा गिरोह मुल्क शाम जा बसा। ठीक है, चले फिर ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बांट दिया था, हाँ। फिर गजवा बदर दोम, इसमें कोई इतनी नहीं ये है, वो बस जो चैलेंज था ना ओहद के दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर थे और अबू सुफियान के साथ जो क्या मुकालमा हुआ था ना कलाम के जरिए, तो तब उसका वो था कि दो ये गजवा दोम हुआ, हाँ, बदर दोम। ठीक है, चले आगे आ जाए, गजवा खंदक। गजवा खंदक क्यों पेश आए, तो इसका जवाब है, देखें मैम बहुत सारे ग्रोहों ने नहीं क्यों क्यों, अब सवाल देखिए क्यों पेश आई, गजवा खंदक क्यों पेश आई, जो अब इसका लिख लिया या मैंने लिखा थी पता नहीं, जो बनु नजीर को जिलावतन किया, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए पहले कुरैश को भड़काया और फिर आजू बाजू वाले सारे हिज्ब को भड़काया कि आप मुसलमानों के साथ जंग करें, और सब रेडी हो गए, बस इतना सा आंसर। ठीक है ना, ये बात सामने आई, बोले जल्दी। जी मैम। जी, और ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में क्या कहा था, ये पहले भी मैं बोल चुकी ना, क्या कहा था, ओके। गजवा खंदक की शौरा जब बैठी थी, हाँ, तो क्या मशवरा हुआ, खंदक खोदने का मशवरा। हाँ, और वो किसने दिया था, जी किसने दिया था, फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इसके उनके बारे में जो हमने मालूमात दी थी वो उसका क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ, वो अभी तुम वैसे रखे, वो कभी असाइनमेंट में हम आपको देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले फिर आगे आपकी बुक में देखें कि हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा गया। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बजाते खुद शरीक थे खंदक खोदने में, हाँ, ठीक है ना। फिर आगे देखें, हाँ, और एक पॉइंट याद रखने का, जाड़े का मौसम था, जाड़ा, अब जाड़ा ना लिखे तो जरा हम आते हैं, एक सेकंड, बेल मारा किसी ने, जी। तो अब आप इस पे आ जाओ कि हम लोग क्या आए थे कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने की ये थी। अच्छा, खाली इतना तो बताओ कि ये अरब की चाल थी, यानी अरब लोग इसको, ये बात को जानते थे अरब, नहीं जानते। नहीं मैम, ये कहाँ इतना तो बताना पड़ेगा, कहाँ से, ईरान, फारस, फारस से, इसीलिए तो फारसी ना, फारस मतलब आज का क्या बताओ, पर्शियन, आज का पर्शियन क्या है पता है आपको, जी ईरान। ईरान, ओके, ईरानी होगा, हाँ। चले आगे आगे देखें, फिर हाँ, किसके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत ये किए, जाबिर बिन अब्दुल्ला, हाँ, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। और ये मौजिज़ा था, हाँ, 2-3 मौजिज़ा हमने आपको बताए थे, तो उसका बस अगर थोड़ा सा कोई नाम याद रहे तो आपको बस वही याद रखना है। चले खंदक के आर पार, अच्छा, गजवा खंदक में सिपह सालार कौन था कुरैश की तरफ से, उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। नो, सिपह सालार कैप्टन अबू सुफियान। अबू सुफियान, इधर का बोल दी मैम। हाँ, नहीं इधर नहीं, उधर अबू सुफियान। ठीक है जी, चले फिर आगे आगे देखे, आगे आगे आते जाएं। मैम हाँ, ये बोलिए। गजवा खंदक का ये लेंथ विड्थ और डेप्थ एक बार बताइए ना मैम। अच्छा, ठीक है, उसका हाँ लेंथ है 5544, लिखा है मैंने, लिखा थे मैम, बट किलोमीटर, आप 55.44 ना, या 55.44 और 5.54, 55.44। आई थिंक मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने आपको बराबर मैम ये आपने बनाया नहीं। 5.44 लिखाए थे, आप बोले थे कि आप कंफर्म करके बता देंगे बाद में। अच्छा, ऐसा बोले थे ना जी, यहाँ इस पे लिखा हुआ,
اچھا چلے پھر بھی آپ اس کو رہنے دیں, میں آپ وہ کو ایگزام میں بتا آنے دوں والا گی. ہے میم, نہیں نا. ایگزام کیسے میں بتاؤ. چلو آگے نہیں آگے مطلب آ آپ جائیں. اگر بتائیں گے پرفیکٹلی اور آنے والا ہے تو اتنا یاد کریں گے. نہیں آنے والا. اچھا اوس کے سردار کون اور خزرج کے سردار کون؟ آپ دونوں میں بالکل یہ نہیں کرنا کہ دونوں سادین ہیں, سادین اوس سادین کے ساد. سعد بن معاذ, ہاں اوس کے اوس ساتھ کے, ہاں اور سعد بن عبادہ ہاں دوسرے سعد بن عبادہ, ہاں خزرج کے. کس کو؟ خزرج کے. ویری گڈ. چلے کیونکہ ابھی یاد رکھنا ہے آپ کو ہم. اور پھر آگے ہیں, اچھا کون زیادہ زخمی ہو گیا تھا غزوہ خندق پہ جن کو تیر لگا تھا؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. جی جی جی. اور انہوں نے وہاں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آ سکتا ہے. دیکھو آخری لائن, یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہاں یہ کس نے کہا, بولو کس نے کہا؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے. تو اور کون سے موقع پر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ خالی کس نے کہا نہیں, کب کہا وہ بھی آ سکتا ہے. خالی ایک لائن میں بولو کب کہا تھا, کون سے موقع پر؟ تیر لگ گیا تھا. ہاں جب تیر لگ گیا تھا. ایگزیکٹلی یہی آنسر چاہیے. ٹھیک ہے چلے آگے ہیں بنو قریظہ کی غداری. اوکے تو بنو نذیر کے, اچھا بنو قریظہ کے کا سردار کون تھا؟ پہلے وہ دونوں میں ڈفرنس ہے. بنو قریظہ کا سردار کون تھا؟ ہوئی ہاں کعب بن اسد, یاد رکھنا. اور بنو نذیر کا ہویائی بن اخطب. ٹھیک ہے نا. تو خالی ایک چھوٹا سا باریک پوائنٹ یاد رکھنا کہ کعب بن اسد پہلے ریڈی نہیں تھا غداری کرنے کے لیے. پھر بنو نذیر کے جو سردار تھے ہویائی بن اخطب, اس نے بھڑکایا اور اس نے کہا کہ جو انجام تمہارا ہوگا, چلو غداری کرتے ہیں, جو انجام تمہارا ہوگا وہی انجام میرا بھی ہوگا. اسی لیے کیونکہ آگے بنو قریظہ کا جو غزوہ ہوا اس میں ان کو بھی مارا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ تو بنو نذیر سے تھے, خیبر میں بنو نذیر بسے ہوئے تھے, بنو قریظہ کا نہیں تھا وہ, لیکن بس اس نے جو وعدہ کیا تھا اس حساب سے. ٹھیک ہے چلے آگے ہیں. دیکھیں وہ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ بنو نذیر نے کے سردار ہویائی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا. ٹھیک ہے, ہاں وہ ایک لائن انڈر لائن کریں. میم کہاں ہے یہ؟ نہیں یہ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا last اثر, paragraph. یہ پیراگراف میں دیکھو پیج نمبر بولو. اسٹارٹنگ ہی ہے. 166. سیکنڈ لاسٹ. ٹائٹل ہے, یعنی جو پیراگراف کا ٹائٹل ہے بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر. یہاں آؤ. ٹھیک ہے اس پیراگراف میں آؤ. ملا پیج نمبر غزوہ خندق میں ہی پیج نمبر بولو نغمہ. 166. 166. چلے لاسٹ دیکھو, سیکنڈ لائن. تم اس کی بول رہے ہیں اردو کا بول رہے کہ یہ بول رہے ہیں اردو کا میم, اردو. جی اردو کا؟ میم مل گیا. مل گیا, اچھا ٹھیک. 166 کا لاسٹ پیراگراف. اوکے اوکے چلے آگے دیکھیں. ہاں کس کا نام لے کر جو گئے تھے نا خیانت دیکھنے کے لیے کہ ہوا کہ نہیں, تو کس کا نام لے کر کہا؟ خالی اگر سپوز میں نے دیا عدل وقارا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, کیا بولو گے, کس نے کہا؟ دونوں قبیلے غداری کی تھی نا میم. نہیں کس نے کہا, یہ کہا کس نے؟ جو پیغام لکھا صحابہ نے. بس صحابہ کا لکھے آپ, نام ہے اوپر مسلمہ بن اسلم ہے نا, وہی نا. نہیں ایک سیکنڈ, نہیں ایک منٹ. سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ. اچھا مزید ٹھیک ہے. انصار صحابہ کے ساتھ اس کی خبر کر کے فرسٹ ہاں پیراگراف 57. جی سعد بن عبادہ ہے نا. سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا تھا. تو آپ ان کا نام بھی لکھ سکتے, آپ خالی صحابہ بھی لکھ سکتے, انصار میں سے. ہاں خالی صحابہ لکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اور عدل اور کارا کیوں کہا؟
कहा था ये खाली? वो ये रजी के हादसे में उन्होंने ये किए थे ना गद्दारी। हाँ, तो जैसे रजी के हादसे में ये दोनों ने गद्दारी की थी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनडायरेक्टली बता दिया गया था कि इसने भी गद्दारी की। किसने? बनु कुरैज़ा ने। ठीक है, हाँ चले आगे ले ले। मैम ये नहीं अच्छा, बोला ना खंदक हाँ के वक्त क्या क्या पेशन गोई हुई हाँ समय। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, और वो मैं आप लोगों को इसमें से लिखाई थी। किसमें से? लिखाए थे मगर लिखाई आंसर। थी ना, है ना? हाँ अच्छा, एक बात, गजवा खंदक को क्या और कौन सा नाम दिया गया? अहज़ाब सूरह अहज़ाब। और उसके बारे में कौन सी सूरह है? सूरह सूरह अहज़ाब में सूरह आया। अल अहज़ाब। हाँ, सूरह अहज़ाब में। ठीक है, चले। और अहज़ाब किससे बना हुआ है? अहज़ाब ग्रोह से, गिरोहों से, ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स। यस, ओके। और फिर आगे हैं, हाँ अब आ जाओ पेशन गोई। क्या वो की? इसके बहुत पहले इम्पोर्टेंट भी है। क्या बोलो? मैम, इसके पहले वाला जो था ना, ये सूरह हशर के भी बारे में आपने लिखाए थे कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए थे कि सूरह हशर का नाम बनु नज़ीर रहना चाहिए था। हाँ, ये याद रखना, तो ये बनु नज़ीर इम्पोर्टेंट है, है। क्योंकि उसको पूरा बनु नज़ीर के बारे में है। सही बात है, जज़ाकल्लाह खैर। आगे देखो, आगे शायद पेशन गोई के बारे में आगे है ना, अपनी बुक में है, उसी में मैं आगे ऐड कराऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, 164 पे है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अगर मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दूं, हाँ, कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो फरेब के सिवा कुछ नहीं था, ये अलग बात है। लेकिन जो मुसलमान का है ना कि हमारे ये अल्लाह का वादा है, वो तो पूरा हो गया। मतलब वो कहाँ है? वो आयत नहीं है इसमें। वलम्मा राल मोमिनुल अहज़ाबा कालू हाज़ा मा वादनल्लाह व रसूलहु व सदकल्लाहु व रसूलहु व मा हाँ, ज़ादहुम वो वाली आयत। उसका नंबर बताओ बेटा। 165 पे। 22। नहीं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर। अहज़ाब है ना, मैम है ना 33। 167 पे ही है। नहीं 22 to नहीं, आयत 33 नंबर बताओ। 22 22 and 23। 22 and 23। अच्छा ठीक है। और मुनाफिक जब ये बात कहूँ ना कि मोहम्मद तो हमसे वादा करते थे कि हम कैसर और किस्रा के खजाने खाएंगे, और यहाँ तो ये हालत है कि कज़ाए हाजत के लिए भी निकले में जान की खैर नहीं। इतना लंबा तो नहीं है, वो भी मुनाफिक कह रहे हैं। फिर हमारे घर खाली पड़े हैं, वो भी मुनाफिक कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें से कोई भी आएगा। हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो फरेब के सिवा कुछ नहीं था, ये भी मुनाफिक की ही बात थी। तो उसमें से तीनों में से कोई भी आएगा। अच्छा, अब आगे देखिए, जो यानी अल्लाह का जो करना था, वो गजवे में फूट डालने के नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन से कबीले से बिलोंग करते थे? गतफान, कबीला गतफान। हाँ, याद रखो, बनु गतफान से। ठीक है, हाँ। और उनका ईमान लाना क्या मुसलमान या यहूद को पता था? नहीं पता था। नहीं पता था, है ना, उनको पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए वो नहीं बताना ही काम आ गया। राइट, ओके। चले, यानी वो एक बोलते ना, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुसलमानों के लिए तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि उन्होंने पूछा कि मैं तो एक आदमी हूँ, मतलब इन्हें मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो एक आदमी हो, क्या कर सकते हो? तो लेकिन क्या करो? वो देखो, खाली अंडरलाइन करें, क्योंकि जंग तो चालबाजी का नाम है। तो चालबाजी यानी धोखेबाजी, बताओ। नहीं चाल चलना। हाँ, चाल चलना, जो पॉलिटिकल चाल हो, जो हमें फायदा दे ने जिताने में। हाँ, धोखे से नहीं। हाँ, धोखेबाजी नहीं है। ठीक है, चलो आगे हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि हजरत नईम रज़ियल्लाहु क्या चाल चले, वो तो हम आपको असाइनमेंट में देंगे। अब आगे आ जाए, एकदम आगे आ जाए।
वो गुमाली, वो अभी वो कंफ्यूज ना होना, हाँ, कि तुम वो गुमाली मतलब वो क्या ये दो ना, वो कह रहे थे ना कि तुम प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारे पास अपने आदमी छोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं, गुमाली। अब जरा उर्दू वाला यरगमाली, बताए उसमें। हाँ, यरगमाली, यरगमाली, ओके, यरगमाली। यरगमाली, यरगमाली। सॉरी, हाँ यरगमाली, यार, ओके, हाँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि खाली पॉइंट्स वाइज 3 पॉइंट बताएं। पहले मैं अभी वो प्रेडिक्शन पे आती हूँ, पहले खाली 3 पॉइंट बताएं कि गजवा अहज़ाब की जीत, मतलब जो जीत हुई ना मुसलमानों की, तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या मदद आई? 3 बताए इसमें। मैम एक तो बहुत ज्यादा ठंड हुई उसमें, सैंड स्टॉर्म था, ठंडा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो एक आएगा कि अल्लाह ताला ने ऐसी तेज हवा भेजी, है ना, ताकि कि सब उनके टेंट उखड़ गए, वो एक खानों पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फरिश्तों का लश्कर भेज दिया। फरिश्तों का लश्कर, हाँ, फरिश्तों का लश्कर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, रौब डाल दिया अल्लाह ताला ने उनके दिलों में, हाँ, ओके। और चौथा, उनकी ठंडियां उलट गई उनकी हवाओं से। नहीं, और अभी तो वो हमने बात की ना, कर गई। नईम हाँ, बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना, ये जी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये बहुत बड़ी जीत की वजह यही थी, समझ में आया? अल्लाह ने उन्हीं दुश्मनों में से ही उनका मददगार पैदा किया। हाँ, मददगार बना के दिया, अंदर को एग्जैक्टली। डालने के लिए। हाँ, फूट डाल दो, और वो फूट भी ऐसे कि ये नहीं कि उनका नुकसान हो जाए, कुरैश का या यहूदी का या जो बनु गतफान, उनकी खुद की अपनी भी बनु गतफान का नहीं। ऐसी चाल चली कि वो, ये तो अल्लाह की तरफ से था, हाँ। तो अब उसको एक लाइन में बिठाओ ना, एक पॉइंट में बिठाओ। क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट? नईम बिन मसूद पॉइंट ना, रज़ियल्लाहु का ईमान लाना और उनकी चाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही थी कि चलने, है ना, या उनकी समझ बूझ, क्या बोलेंगे, चाल, क्योंकि चाल तो थी, उसको क्या बोलेंगे? एक अच्छा सा वर्ड बिठाओ। हिकमत भरी समझ से उन्होंने हिकमत पर मबनी चाल चली उन्होंने ना। हाँ, ये रखो, ठीक है। और उनकी हिकमत भरी चाल, है ना, सही है ना जी, जज़ाकल्लाह खैर। चले आगे, आगे मैम देखिए, यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, वो नहीं लिखने। कौन से पॉइंट से बताओ? मैम उनकी हांडियां उलट दी, तो अल्लाह अभी ताला ने बताया ना कि वो साइक्लोन जैसा आया और उनकी टेंट उखड़ गए, हांडियां उलट गई, वो एक ही लाइन में लिखना है, लाइन में आएगा। ओके मैम, ठीक ठीक है। है ना, वो एक पॉइंट ही बनेगा। हाँ, दो उसमें 2 बातें लिखी तो भी चल जाएगा बस। चले आगे, प्रेडिक्शंस के इसमें क्या क्या लिखेंगे बताओ? मैंने 3 प्रेडिक्शन बताए थे ना, है ना, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में बताओ। वो देखो, पहले तो वो था ना, क्या कि चट्टान आप सब, हाँ, हाँ, बोलो। एक था जो जब उन लोग खुदाई कर रहे थे तो सब चट्टान जमीन वो एकदम मतलब नहीं, उतर कर एक बहुत हार्ड रॉक आया था हार्ड, ना, हार्ड एक बहुत सख्त था जो नहीं मतलब एकदम टूट रहा हाँ, एकदम था। तो खाली सॉफ्ट आप वो सब हो ने गया। एक ज़र्ब लगाई है ना, और वो मैम, चट्टान टुकड़ा हो गई। चले, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे शाम की कुंजियां दी गई और इस वक्त मैं उसके सुर्ख में खड़ा हूँ। नहीं, वो सेकंड आएगा बेटा, वो सेकंड आएगा, पेशेंट गोई। जी मैम, और फर्स्ट यही है ना कि अल्लाह अकबर, मुझे शाम की कुंजियां दी गई हाँ, और उस ओके, वक्त मैं उसके सुर्ख महल देख रहा हूँ। देन हाँ, सेकंड है, फारिस की सफेद महल देख रहा हूँ और काबा की चाबियां अभी तक उन्हीं के मतलब वो, खैर हमने ये उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाँ, बारे में वो लिखे अलग थे। बात है, हाँ, और हाँ, फिर थर्ड पॉइंट है, ना यमन की कुंजियां दी गई, हाँ, सना के फाटक देख रहा हूँ। हाँ। तो यानी ये 3 चीज क्या हुई कि बाद में पेशेंट गोई पूरी उतरी, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर दी थी, पेशेंट मतलब प्रेडिक्शन दिया था, ठीक है। और क्या लिखाया था मैंने? यही था ना, बस ये 3 ही थी यही ना, 3 पॉइंट्स थे मैम। है मैम ना। और एक था खजूर लेकर वो जो है ना उनके वालिद वो तो अबू मौजिज़ा जहल बेटा, वो मौजिज़ा, वो प्रेडिक्शन नहीं है। उन्होंने अहले पेशेंट गोई खंदक को 3 ही दावत दे लिखाए दी, थे। ऐसा नहीं, बोले वो बेटा मौजिज़ा में आएगा, मौजिज़ा में आएगा, हम्म, ठीक है ना। वो प्रेडिक्शन नहीं था, प्रेडिक्शन तो ये 3 ही थी, बशारत जो थी वो ये 3 की थी, हाँ, सही है ना। चले आगे, आगे चले, जीत भी हो गई। चले अब ये
लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए। मैम ये भी हाँ बोले थे ना कि हाँ अलमबरदारी किसके हाथ में मतलब दिए थे, वो उस्मान बिन हाँ, तलहा के हाथ में, अच्छा वो बताए उस्मान थे बिन आपने। तलहा, ओके। और देखो ये पूरा आंसर यहाँ लास्ट में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अल्लाह ने दुआ कबूल की और मुशरिकी पर तंद वो हवाओं और फरिश्तों का लश्कर भेज दिया। ये एक पॉइंट। और 2 पॉइंट फरिश्तों का लश्कर भेज दिया जिसने इनको हिला डाला, हाँ, उनके दिलों में रौब डाला दिया और उनकी हांडियां उलट दी। ये हांडियां उलट दी ना, वो हवा के साथ ही लिखे हैं, हाँ, तेज हवाओं के साथ। उनके खेमे उखड़ गए, हाँ, और कड़कड़ाती सर्दी ने अलग मार मारी। ये सब उसके इसमें से खाली पॉइंट बना दे, कोई भी 4 पॉइंट बना दे बस, ठीक है। और उसमें ऐड कर ले आसिम बिन मसूद बिन आसिम नईम बिन बिन मसूद। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु, सॉरी, नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। और हाँ, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को वो खेमे में भेजे थे, किसके? दुश्मन के खेमे में, मतलब कुरैश के खेमे में, क्या? खबरगिरी करने के लिए। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ैफा बिन यमान, हाँ, ठीक है ना। और फिर आगे लास्ट पैराग्राफ देखिए। इस गजवे के इब्तिदा शव्वाल 5 हिजरी में हुई और इंतहा 1 महीने बाद ज़िलक़ादा में हुई, ठीक है। वो अंडरलाइन कर लें। और आगे देखें, वो जो बात है ना कि अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई ना करेंगे, ठीक है। यानी अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कब कहा? ये इसके बाद होने के गज़वा बाद खंदक के बाद, जब वो घर पे लौट आए थे। चलिए, हाँ जी। आ जाए मैम बनु इसमें कुरैज़ा कितने लास्ट, हाँ बोलो। कितने थे सामने वाले, वो नहीं लिखा है ना आपने? वो लिखाई थी ना, लश्कर वो लिखाई थी 6000 बनु गतफान से, फिर नहीं हाँ मैम, 6000 है ना? 10,000 टोटल थे कुरैश। 10,000 थे मैम सामने वाले, और अपने मुसलमान हाँ 10,000, 3,000 थे। हाँ हाँ, यस यस, वहाँ 10,000 अपने अपने मुसलमान 3,000 ना, मुसलमान 3,000, राइट। हाँ। हाँ ओके, हम ये आपने बोला याद था रखना। कि गतफान से 6,000 और कुरैश 4,000, तो टोटल हाँ वो अलग बात है, 10,000, लेकिन टोटल उनका 10,000 का था ना 10,000। लश्कर, और है ना। मुसलमान पहले 1,000 थे खोदते वक्त, लेकिन बाद में 3,000 हो गए। नहीं, खोदते तो वक्त क्या, 1000 थे कि 2,000 थे बाबा? नहीं आपने 1000 1000 थे। लिखवाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो फिर वो, लेकिन जब थे तो तब 3,000 रुपए थे, हाँ 3,000 थे ना। हाँ, ओके चलो। आगे बनु कुरैज़ा लास्ट आ जाए। मैम बनु कुरैजा अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मतलब जहाँ तक नहीं हुआ है नहीं, वहां हो गया हो गया बनु कुरैज़ा तो करा, क्योंकि ये पूरा तो हुआ। खास मेन था ना। उसके बाद वाला जो ये तो बाद अच्छा। के हादसा थे ना, तो अबू हम्म राफे सलाम बिन अबिल हकीक का हम्म कत्ल, हम्म। वहां वो नहीं आएगा, बनु कुरैज़ा अच्छा, का नहीं आएगा। वहां तक आएगा, ओके ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये तो मेन नतीजा है ना, यही जी जी, तो खंदक का नतीजा है। नतीजा और है। ये इसी के बारे में तो आप अरे कुरान में आयत है नाजिल हुई, बनु जी कुरैज़ा जी, की बनु कुरैज़ा। तो ये एकदम लाजिम मलजूम है, ये दोनों गज़वा खंदक ओके और ये बनु कुरैज़ा का। हाँ चले, जी बनु कुरैज़ा इंशाल्लाह। पे आ जाए। बनु कुरैज़ा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब, अच्छा कौन आया है ये खबर लेके कि बनु कुरैज़ा के पास जाना है? जिब्रील जिब्राइल अलैहि अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो मैं राइट एंड रॉन्ग में पूछूं कि गज़वाए बनु कुरैज़ा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, राइट और रॉन्ग? राइट, राइट राइट। वो गए राइट। थे फरिश्ते के जो खुद लम्बे बना। मौजूद थे जी। और और उन्होंने क्या, उन्होंने उनका, अल्लाह ताला ने उनको क्या काम सौंपा था कि मैं जाके उनको डालो। उनके किलों में जलजला बर्पा करूंगा और उनके दिलों में रौब रॉब डाल दूंगा, डालनी। ठीक है। ये 2 काम करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ क्या उनके पहले ही निकल गए थे, ठीक है ना। कहाँ? बनु कुरैज़ा के किले के पास, ठीक है, या किलों में। और वो कौन-सी नमाज़ थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये नमाज़ अच्छा, बनु कुरैज़ा असर में, असर। अच्छा। और वो क्या बात थी कि हथियार और कपड़े अभी तो बदले ही नहीं थे, ये क्या बात थी? मैम जस्ट लौटे थे ना जुआ खंदक, खंदक से गज़वाए खंदक से, और गज़वाए खंदक से लौटे थे, गज़वाए अहज़ाब से, हाँ।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تھے وہ بھی دیکھیں अंडरलाइन کریں. अकरम सलमा सलमा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में. मैम क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जिब्रील अमीन आए ना ये लेकर, तब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे गुस्ल फरमा रहे थे, और मतलब उसके बाद ही गुस्ल लिए, हाँ अभी कपड़े उतारे थे और हथियार रखे थे कि फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए. ठीक है मैसेज. चले अच्छा, अब वो जो बात है ना अना नामी वो मत, हाँ कि अना नामी कुएं पर, वो जाने दे, उसको नहीं करना. आगे आ जाए. हाँ, किसको भेजा था बनु कुरैजा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पहले किसको भेजा अबू था कि लबाबा वो बात करें? हाँ, अबू लबाबा अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जी. और उन्होंने क्या क्या खता कर दिए थे बताओ, एक लाइन में बताओ. सारे से अपने गदन पर वो उंगली इशारे से उंगली इशारा कर दिया था ना मैम वो किधर है. हाँ, के कत्ल कर दिए जाओगे. ठीक है. अच्छा, अब अच्छा अबू लबाबा को क्यों भेजा? वही या तो मैं पूछूं कि बनु कुरैजा ने अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को ही क्यों मांगा बताओ? वो नेबर थे साथ में, मतलब अच्छे उनके फ्रेंड थे. हाँ, हलीफ हलीफ नाम याद रखो, हलीफ थे वो. अच्छा. ठीक है, वो हलीफों में से देखे तो चाहा कि अपने बाद मुसलमान हलीफों से मशवरा करें, चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो अबू लबाबा को भेज दे ताकि उनसे मशवरा कर लिया जाए. समझ में आया? हलीफ मीन्स साथी होंगे. हाँ साथी. हलीफ पता है ना कि ये लोग कबायली निजाम था ना, तो कबायली निजाम में क्या कि अगर एक कबाइल दूसरा को बोले कि मैं तुम्हारा हलीफ हूँ, हलीफ मीन दोस्त हूँ, तो ऐसा पक्की यारी दोस्ती हो जाती है कि फिर वो अगर वो ये मदद चाहे तो मदद के लिए तैयार. वो इवन मैम उनके साथ मर जंग नहीं करते थे ना हाँ, कभी वो. हाँ, और कभी दौरे जारियत में तो ऐसा कि विरासत में भी अगर पर्सन टू पर्सन हलीफ हो ना, तो विरासत में भी उनको हिस्सा दे देते थे. और अगर कबाइल के हलीफ हो तो हर इस कबाइल पर अगर हमला हुआ तो वो जरूर मदद के लिए आएगा, तो ही तो वो हलीफ है. समझ में आया? ऐसा इनका जैसे याराना था. मैम जो बाहर से आए हुए थे ना, मक्का मदीना इनके नहीं होते थे, तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ रहते थे हलीफ बनकर. हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये जब आए ना मदीना में तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कि यहाँ के रहवासियों से कुछ करे, तो ये क्या किए, ये अपने अपने कबाइल में औस और खजरत से इन्होंने हलफनामा कर लिया था. ठीक है ना, हलीफ बन गए थे इनके. चले आगे देखेंगे. तो फिर अच्छा उन्होंने अपने आप को क्या सजा दी अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने? मदीने के एक सुतून से अपने आप को बांध लिया है. मस्जिद मस्जिद नबवी में. मस्जिद नबवी में. ठीक है, अपने आप को सुतून से बांध दिया. अच्छा, तो उनकी बारात कौन लेके आया, मतलब क्या हुई उनकी बारात, क्या हुई, कब आई, चले कब आई? 6 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला. नहीं, हाँ, उनको जो खिदमत कर रही थी ना, हाँ उनके लिए आयत उतरी उन्होंने बाबा. आयत उतरी. ठीक है, वो इसकी आयत सूरह तौबा की आयत नंबर में लिखाई थी, आयत नंबर नहीं याद है मैम. किसी को याद? 102. यस, ओके, जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है, चले आगे हैं. हाँ, फिर औस के सरदार कौन, किसके ऊपर इनका फैसला, जो देखो पहले क्या हुआ कि जब बनु कुरैजा ने अपने आप को हथियार डाल दिए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को, देखो वहीं नीचे देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बांध दिया और औरतों और बच्चों को अलग करके कबीला औस के लोग नहीं, यानी इतना पहले कर लिया. ठीक है, तो उनको कबीला औस के लोग उनसे कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश क्यों कर रहे थे बताओ, क्यों कर रहे थे? हालांकि उनका जुर्म तो बहुत बड़ा था. बनु कुरैजा का क्या जुर्म था बताओ? अच्छा चलिए ये बताओ, बनु कुरैजा का जुर्म क्या था? मैम वो लोग उन्होंने निशान के मदीना के ऊपर ये किया था ना, छिपने की और गद्दारी की. गद्दारी भी की. और ऐसे वक्त में गद्दारी की कि जब पूरा अहले अरब मुसलमानों पे टूट पड़ा था, उस वक्त में उन्होंने गद्दारी की. ठीक है ना, तो ये छोटा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है. बहुत बड़ा जुर्म है. ठीक है, तो
अच्छा, इस जुल्म की सजा में किसने फैसला सुनाया? साद माज साद बिन साद माज बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरदार और जो उसके औस ठीक के है। सरदार सरदार थे। हाँ, और जिनको वो जी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ लेके आए और जिनके वेलकम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सबको खड़े होने के लिए कहा ना। नहीं, नहीं बुक में से बोलो ना हमरा। अपने सरदार की जानिब उठो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक से वो बात है। हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हाँ, साद बिन माज रज़ी ने एक लाइन में वो बता दो, क्या हुक्म जारी किया? मर्दों को कत्ल कर मर्दों दिया को जाए, कत्ल करने औरतों का। बच्चों को कैदी और बना लिया बच्चों को जाए, कैदी बना अमवाल लिया जाए तकसीम कर दिए और जाए। अमवाल माल तकसीम कर दी जाए। तो क्या ये अपने खुद से उन्होंने ये फैसला किया? आसमानी फैसला भी यही था अल्लाह। ये अल्लाह उन्होंने ताला खुद से किया, ने बट डाले अल्लाह ने भी वही फैसला थे, किया, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हाँ, और हाँ, देखो ये लाइन हम उस दिन चुक गए ना, तुम बताइए यहाँ है। ये फैसला यहूदी शरीयत के मुताबिक भी था और बल्कि उनकी शरीयत के फैसले के मुकाबले में तो ज्यादा रहमो नरमी पर मबनी था, क्योंकि उनकी शरीयत में क्या था कि सब कोई, नॉट ओनली मर्द, सब जी, बाल बच्चों सब समेत क्या कर दिया जाए? कत्ल कर कत्ल दिया किए जाए। ये उनकी शरीयत में था, जो ऐसी गद्दारी करे तो। ठीक है, लेकिन मुसलमान अपनी शरीयत में है, कुरान की शरीयत में क्या था कि जो माज रज़ी अल्लाह ने कहा ना, साद बिन माज रज़ी अल्लाह ने, तो वही हाँ, वो आसमानों का ही फैसला था। ठीक है, चले तो फिर क्या हुआ कि मदीना लाया गया। हाँ, और उसे सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस सब मर्दों को कत्ल कर दिया गया था और किसी किसी को छोड़ भी दिया गया था, है ना। और उनकी तादाद, जो मर्दों की तादाद थी वो 400 थी, देखा अंडरलाइन करवाई है, और कुल कितने के 600 या 700 थी। ठीक है, चले आगे है। हाँ, हुयै बिन अख्तब ने वो शर्त लगाई थी ना कि उनके साथ रहेगा, जो हशर उनका होगा उसका भी वही होगा। चुनांचे मुहासरा और हथियार डालने के दौरान ये भी उनके साथ कत्ल कर दिया गया था। एक छोटी सी बात, हुयै बिन अख्तब किन के फादर थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये है उम्मुल मोमिनीन हजरत हजरत मुताहरा, सफिया हाँ, के कौन? बाद सफिया, हजरत सफिया, हाँ, सफिया बिनते अख्तब, सफिया हुए बिनते आए हैं, अख्तब। हाँ। जी, हुयै बिन अख्तब, तो वही सफिया बिनते अख्तब कहते हैं उनको सीरत में। हाँ, तो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बाप थे वो। ठीक है, चलिए आगे है। खाली वो एक बात ले लेना कि यहाँ से जो हजरत रेहाना बिनत जैद बिन अमरू बिन कुनाफा, बस हजरत रेहाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा अज़वाज मुतहरात बने। हाँ, और फिर उनसे आज़ादी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर दी थी। बस यहाँ ये गज़वा बनु कुरैज़ा में ये हुआ था, क्योंकि आगे खैबर में हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा आएंगे। तो ये जो हजरत रेहाना रज़ियल्लाहु अन्हा है ना, वो कब आए? बनु कुरैज़ा के वक़्त। ठीक है, गज़वा बनु कुरैज़ा के वक़्त। चले आगे है। हाँ, ये जो बात है ना कि रहमान का अर्श लर्ज़ उठा, किसकी वफ़ात पर? साद बिन साद माज। बिन माज रज़ी साद अल्लाह बिन ताला माज़। और उनका लोग कहते थे कि उनका जो यानी मैयत थी वो हल्की है उठाने में, जनाज़ा। हम्म, क्यों? जिन फरिश्तों ने उनका फरिश्तों ने भी जनाजा उठाए उठाया। हैं। ने भी फरिश्तों उठाया। की कितने तादाद भी जानते आती है, हैं, कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते उनका जो जनाजा था वो उठाए हुए थे, और उनके मौत से रहमान का अर्श लर्ज उठा। तो क्या उनका, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी, सब सहाबा पर, लेकिन देखो उनका क्या अमल होगा ना कि पूरा अर्श लर्ज उठा। और उनके 2 बड़े काम आते हैं, काम यानी जो सीरत में आते हैं ना, साद बिन माज, क्योंकि देखो जल्दी इंतकाल हुए। अभी तो 5 ही हुए, अभी तो आधी आधी यानी सिर्फ 5 ही साल में मदीना में, और उनकी वफात हो गई। तो उनको कितना करने मिला? ये 5 साल में करने मिला ना। और उनने जी, देखो क्या क्या से क्या कर दिया, पूरे अपने कबीले को मुसलमान बना दिया सबसे पहले उनकी। और सेकंड, ये बनु कुरैज़ा का जो मामला आया ना, तो उनका फैसला। का फैसला लिया। हाँ, तो ये बहुत 2 बड़े कारनामे उनके हिस्से में आते हैं। ठीक है, चलिए एक आगे में वो भी है। हाँ, एक वो भी में वो जब उम्रा करने गए थे तो उनको थ्रेट करे ना अबू जहल ने, हाँ, तो उन्होंने भी अबू बोला जहल कि ने क्या किया था? अच्छा करूंगा। हम्म, जी,
उनका रस्सी बंद कर दिया मक्का वालों का। हाँ, वैसे भी तुम देखिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखना, अंसार ज्यादा थे नहीं, कब? गजवाए बदर में, बदर ठीक है ना, अंसार को नहीं लिया गया था। गजवाए ओहद में लिया गया था, तो तब मशवरा किए, तब दोनों सादेन इनको कहते हैं, दोनों साथ रेडी हो गए थे और कहते कि तुम कहाँ, तुम जैसे 7 समंदर पार भी अगर हमको कहेंगे कि वहां जाए तो हम वहां जाएंगे, और हम जंगो इंसान है, मतलब मशवरा भी दिया और आप को तसल्ली दी कि अंसार भी आपके साथ है, जो भी आप फैसला करें जंग के बारे में, ठीक है ना। तो फिर ओहद में सब थे, हाँ सब थे, ठीक है। और ओहद में अंसार और मुहाजिर कितने इंतकाल हुए, वो बस वो क्योंकि बहुत पेचीदा हो जाएगा, तो बस 70 साहबा में से, मतलब मुसलमानों में से 70 साहबा, हाँ, और कुरैश में से भी तकरीबन 70 ही आते हैं ना, उनके भी 70 आते हैं। जी मैम, सब ही लिखा है। जी चलें, तो यहीं तक रखते हैं, हाँ इंशाअल्लाह। तो हम लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे आप लोगों का एग्जाम होगा इंशाअल्लाह। और मैम एक क्वेश्चन था मैम, कोई नाम है ना बहुत बड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7 वर्ड्स है मतलब एक नाम में, तो उसमें अगर हम आधा नाम लिखेंगे हाँ या हाँ जितने तो भी हम लोग को याद है तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, उतना ही रखे, शॉर्ट ही रखे, कोई मुश्किल, ठीक है ना। चलिए, और कुछ? अच्छा हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था ना कि अगर मैं अभी तक जिसमें एक डेट दूं या एक कोई नंबर बोलूं तो तुमको फटाफट याद आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल 313 क्या है? बदल के मुसलमानों की तादाद। बदल की कब? जंग बदर। जंग हाँ बदल लिखना पड़ेगा जंग बदर में आपको। मुसलमानों की बदर में तादाद। मुसलमानों की तादाद। मैम ज्यादा डेट ना दे प्लीज। तो इसीलिए तो मैं या तो मैं तो फॉलोइंग दे दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है मैम। अच्छा मैच करने। लेकिन वो हाँ याद मैच करें। करके, हाँ वैसा थोड़ा जरा गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी वो हम दो जब हिजरी हिस्ट्री पढ़ते थे ना तो अल्लाह हमको भी अल्लाह याद एक भी डेट नहीं लास्ट लिखते थे पेपर हम। में भी कितने मैच फॉलोइंग थे, है ना, उसी तरह देंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। जी आप हुस्ना आप बताएं तो हम पेपर वैसे ही सेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं, लास्ट को दे दीजिए, वही बना मैच के में दे थे देंगे। ना चले 10-12 मैच रिकॉर्डिंग फॉलो करने है। एक सेकंड, नाम को याद एक सेकंड, मैम रिकॉर्डिंग दुआ बंद में करने दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अभी भी आपके ऊपर वो अमानत है पढ़ने का, हाँ ठीक है ना, तो आपको वो पढ़ना है। हाँ बोलो। नहीं याद नहीं दिलाना, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। लब्बैक कहें तो अल्लाह ताला यहीं पर नियत कबूल कर लेगा। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं नहीं कहती, आपने कहा मुनाफिकत में नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। पर पढ़ते ही हैं मैम बुक हमेशा जी एग्जाम के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।